commerce classes. Today we are going to do in English 8th standard 1.2 unit. Okay, it's a lesson. We have completed first poem. Hope you have written the central idea about it, and today we are going to do 1.2, a lesson. Very interesting lesson it is. Very good story. Dick Whittington and his cat. Okay, let us see what the story tells us. Okay, 1.2. Shall we start? Take a lesson 1.2. Dick Whittington and his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington. There was a boy, very poor boy, whose name was Dick Whittington, who lived in a small village in the south of England. बहुत ही छोटी जगह पे रहता था वो. He used to stay in a very small village. He was a small boy, poor boy. एक बहुत ही गरीब लड़का था और वो छोटे से विलेज में रहता था. He had no proper home. He did not have a proper shelter. He couldn't stay anywhere. उसके पास रहने के लिए भी बराबर से घर नहीं था. For both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. When he was very young, very small, his parent passed away, died. उसके बहुत छोटा था तभी उसके माँ बाप मर चुके थे. इसके लिए उसके साथ में विलेजेस जो थे, गांव वाले जो थे, वो उसके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करते थे. They did not treat him well. They used to just ill-treat him, like because he did not have parents, so they used to ill-treat him. तो उसके पास, बेचारे के पास कोई घर भी नहीं था, बहुत गरीब था और विलेजेस का भी साथ नहीं था. And parents had died early. One day Dick overheard someone say that the streets of London was paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up. एक दिन उसको किसी से पता चलता है कि लंदन के स्ट्रीट में बहुत सारा गोल्ड है और वो गोल्ड वहाँ पे उसको मिल सकता है, तो वो गोल्ड लेके वो रिच हो सकता है. He can become rich with that gold. So he went there. He started going there at that place because he was poor. He did not have proper food to eat, proper shelter to stay. That's why he heard something about this, about the gold, where he can go to the London Pass and pick up some gold, and he can sell it and buy some things for him. So he went there to try his fortune. अपने तकदीर को आजमाने के लिए वो वहां से निकल पड़ा. He decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. He decided, उसको मालूम पड़ा था कि वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड है रास्ते पे, तो वो स्ट्रीट्स में जाके वो पिक करना होता, वहाँ से उठाना. ओके, ये लेने के लिए वो जल्दी वहाँ से चला गया. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. What he thought, if he gets gold, if he becomes rich, with the money, people will treat him kindly. मतलब आजकल देखा ना कि लोगों के पास पैसा रहेगा तो उनको अच्छे से बिहेव करते हैं. तो उसके मन में ऐसा था कि if he gets money, he will become rich, then people will respect him. उसके मन में ये था कि अगर उसके पास बहुत पैसा आ जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, तो लोग उसको जिस तरीके से अभी ट्रीट कर रहे थे, बैड ट्रीट कर रहे थे, वो बैड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा ट्रीटमेंट लोग उसको करेंगे. ट्रीटमेंट मतलब उसके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे, बर्ताव अच्छा करेंगे. So young Dick set out to walk to London. He had not gone for when a man in a car stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. Now, as he was going, one cart मतलब जैसे हॉर्स कार्ट होता है जो जाते हैं रास्ते पे एज अ व्हीकल, वहाँ पे उसको once that man stops him and he's asking him कि whether he's running away from the house. घर से भाग जा रहा है क्या, ऐसा पूछता है, क्योंकि वो फास्ट निकल गया था लंदन के लिए. तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो घर है ही नहीं, तो मैं तो जा रहा हूँ लंदन जस्ट टू सी माई फॉर्चून. मतलब जस्ट टू फाइंड माई फॉर्चून, मेरी तकदीर को आजमाने के लिए. मेरे तकदीर में जो है, अगर वो मिला तो मैं रिच हो जाऊंगा. ये तकदीर को आजमाने के लिए मैं लंदन स्ट्रीट जा रहा हूँ. I'm going to London myself, said the carter. तो वो कार्टर जो है वो हॉर्स राइडर, जो गाड़ी जो चलाते हैं जैसे घोड़ा गाड़ी टाइप रहती है ना वैसे. तो ये से दैट कि if you are going to London then I myself is also going, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, वो कार्टर बोलता है.
जब आप here beside me and we will journey together. The carter says that कि चलो तू इधर आ जा मेरे साथ में, मेरे कार्ट में, मेरे गाड़ी में बैठ. गाड़ी it will not call गाड़ी, तो हॉर्स कार्ट जैसा रहता है वैसे कार्टर रहता है. तो बोलता है कि चल आ जा मेरे साथ में, हम दोनों साथ में मिलके लंदन जाते हैं, लंदन स्ट्रीट्स जाते हैं. They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made him way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in a dismay. Dismay मतलब disappointment. Where was all that fine gold? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. Now what had happened? They had come to the street and what the carter did? He told him to go and he went away. And when Dick saw on the streets, because he had that intention that there will be so much gold on the streets and I will pick that gold and I will become rich. But it was like, you know, when he saw the streets, there was no gold. It was all dirty things, all garbage and all. सब गंदगी थी, गार्बेज था. वो देखता है कि स्ट्रीट्स पे गोल्ड था बोल के आया था, लेकिन वहाँ पे पूरी गंदगी थी. लेकिन उसको बेचारा अकेला खड़े रह के वो कार्टर जाते हुए देखता रह गया और बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो ये सोच के आया था कि वो गोल्ड वहाँ से लेगा and he will become rich, but he had nothing. Nothing was there. And what he did? Now it was night. So he did not have any shelter. So it's a new place, and he saw that people were very unfriendly. मतलब लोग कोई मददगार नहीं थे, helpful लोग नहीं थे. And he was new, unknown. It was a strange place over there. So what he did? He went and he slept in the alley. Alley मतलब दुकान या छोटी जगहों पे छोटी सी एक balcony टाइप छोटी सी जगह रहती है, और वहाँ पे जाके वो सो गया. ये कि कोई उसको आके वहाँ पे मारे नहीं या कोई हार्म नहीं करे. The next morning Dick woke up cold, miserable and very hungry. Miserable था very sad. Next day morning में वो उठा, but he was very sad because whatever he had come, it was nothing was there. He was very hungry. It was very cold and he was very sad. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. At last, he collapsed in the street and lay there too weak to look for food. Now, he was very hungry. It was a new place for him. Nobody was there, so he was very hungry. So he started begging. वो वहाँ पे कोई नहीं था उसका, तो वहाँ पे एक न्यू जगह, वो जगह तो न्यू थी, लोग तो उसके साथ में वो खाना भीख मांगने लगा खाने के लिए. तो वो भीख मांगता तो लोग उसको धिक्कार देते थे, इल ट्रीट करते थे एंड बोलते थे कि चले जाए यहाँ पे, लेजी बॉय, दे टू कॉल हिम लेजी, गेट आउट. और उसको मतलब उसके साथ में उसको कोई खाना नहीं दिया, लेकिन उसको क्या करते थे कि गुस्से में उसको ब्लोज मतलब सर पे उसके ऐसा मार दिया, पंचेस मार दिए, जिसपे वो कलेप्स मतलब गिर गया और 2 हफ्ते तक वो बेचारा ऐसे ही रहा. तो वहाँ पे उसके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ. By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. और गलती से क्या हुआ था कि जब उसको मारा था तो वो जो बेहोश होकर पड़ा था, तो वो ऐसी जगह घर के सामने पड़ा था कि वो एक बहुत ही रिच मैन का घर था. It was a rich person's man's house and he had fallen in front of that house. So, and that person's name was Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. He stopped and said to Dick, "Why can't you work if you need food?" "I would work," said Dick, "but I know nobody who will give me anything to do." Now, when he was fallen in the front of that Fitzwarren's house, and their maid cook, the cook who was cooking, she saw and she wanted to chase him away. मतलब वो उनकी जो घर में कुक थी वो आई और बाहर देखी कि ये डिक वहाँ पे गिरा हुआ है और वो उसको भगा रही थी वहाँ से. लेकिन वो जैसे भगा रही थी तो वहाँ से वो Fitzwarren was a very rich person, उसका घर था वो. तो वो उस वक्त आया एंड ही इंस्पेक्टेड शिप, मतलब उसकी बड़ी बड़ी शिप्स थी और वो शिप्स पे काम करता था, ट्रेडिंग करता था, बहुत ही रिच पर्सन था. तो वो आया तो उसने देखा उसको और उसको डिक को उठाया और उसने बोला कि व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू वांट फूड. तू काम क्यों नहीं करता है? अगर तुझे खाना चाहिए तो तू यू वर्क, तुम काम करो. देन व्हाट डिक सेज कि मैं कर सकता हूँ काम, लेकिन मुझे कौन काम देगा? मुझे कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं देता है. Where I can work for my food.
Take him into the kitchen. Mr. Fitzwarren ordered the cook. Feed him first and then find some work for him. Fitzwarren, very kind person. उसने क्या किया? He told the cook just to take him inside the house, give him something to eat, and then give some little work. उसने फ्रिजवारन ने क्या कहा कुक को कि इसको अंदर घर में लेके जाओ, कि पहला किचन में उसको ले जाके कुछ खाना दो, फिर उसके बाद छोटा मोटा काम उसको करने के लिए दे दो. So Dick was given a home and a living. He had a small corner of the attic. Attic मतलब छोटा सा रूम में एक स्टोर हाउस टाइप रहता है, वहाँ पे छोटी सी कॉट वगैरह होती है ना पुरानी, वो होती है. Attic is a place जैसे स्टोर हाउस जैसा रहता है, जहाँ पे छोटे से रूम में उसको रहने के लिए दिया. और उस रात वो छोटे से स्टोर रूम टाइप था, और attic is a wooden like कॉट रहती है उधर, और attic is a स्टोर रूम, ओके, जहाँ पे एक ऊपर माले के जैसा रूम रहता है, वहाँ पे उसने जाके रात को सो गया. The first was the attic he slept in was. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he had still two difficulties to face. Now उसको घर मिला था रहने के लिए, और वहाँ पे वो थोड़ा खाना बिना खाया, और उसको बर्तन वगैरह मांजने का या थोड़ा बहुत किचन का काम उसको मिल गया. लेकिन लाइफ वाज लाइक थोड़ा बहुत शेल्टर वगैरह मिल गया, बट इट वाज डिफिकल्ट आल्सो टू फेस बिकॉज द कुक वाज टू हैरेसिंग. द फर्स्ट वाज दैट द attic he slept it was overrun by rats and mice. अभी घर तो मिल गया था, थोड़ा खाना भी मिल रहा था, लेकिन दो डिफिकल्टीज थे उसके साथ में. एक तो he was sleeping in that attic, छोटा सा स्टोर रूम में सोया था, वहां पे पूरे चूहे भरे थे और रात भर उसको सोने नहीं दिए थे. At night they scampered all over him and kept him away. पूरी रात वो चूहे उसके आंख पे से भाग रहे थे, इधर उधर सब चहल पहल कर रहे थे, तो रात भर उसको सोने नहीं दिया था. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. Now, what had happened? ये चूहों से बहुत परेशान था, रोज उसको वहीं पे सोना पड़ रहा था, and every day the rats was troubling him, couldn't sleep. तो what he did, जो भी वो काम कर रहा था, whatever he used to work in the house, he used to get paid. मतलब उसको वो पगार देता था, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था उसको. What he used to do, what he did, he saved that money. उसने वो पैसों को बचाया और अपने लिए एक बिल्ली खरीद के लाया. He bought a cat for him so that she can kill the rats. Now what had happened? He bought the cat and he bought the cat in the house where he used to sleep. He kept the cat, and the cat in no time killed more than rats, और बहुत जल्दी उसने बहुत सारे rats को मार चुकी थी, खा चुकी थी. तो इसके लिए उसको वो प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर लिया था. And Dick was able to sleep peacefully. Now what had happened? He bought a cat with his saving money. Now cat was a great help. Cat killed all the rats. The rats were no more there, and now Dick could sleep peacefully. Dick अभी रात को अच्छे से सुकून से सोने लगा था, क्योंकि चूहों अभी बिल्ली लाई थी और बिल्ली सब चूहों को भगा रही थी. The other difficulty, दो difficulties थे, एक difficulty उसने solve कर ली, cat लाके चूहों को भगा दिया. Let us see what is the other difficulty. The other difficulty was which was not so easy to overcome. Overcome मतलब face करना, उसको solve करना. Second difficulty उसको बहुत ज़्यादा difficult लग रही थी, क्योंकि वो बोला था कि इसको आसानी से फेस करना डिफिकल्ट हो रहा था. Was the cook's bad temper. Bad temper मतलब बहुत बुरा गुस्सा. वो कुक जो था, the cook who was cooking for Fitzwarren was had very bad temper. Very bad temper मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था. She shouted and screamed all day. फीमेल थी वो, उसकी कुक, और वो कुक इतनी गुस्से वाली थी कि पूरा दिन डिक को वो परेशान करते रहती थी, चिल्लाते रहती थी, गुस्सा करते रहती थी. And would scold Dick and hit him with a wooden spoon. उसको डांटना,
स्कोल्डिंग करना, एवरी टाइम शी यूज्ड टू स्कोल्ड एंड शी यूज्ड टू बीट हिम विद द वुडन स्पून। वुडन मतलब लकड़ी का चम्मच होता है बड़ा, और उसके साथ में स्टिक टाइप, और उससे वो उसको मारते रहती थी। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज कुड, कितनी भी मेहनत करो, कितना भी काम करने पे what the cook used to do, cook used to get angry on him and she used to purposely beat him, मतलब अपना गुस्सा उस पे निकालती थी और बहुत सारा मारती थी उसको। अगर वो बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था, फिर भी उसके ऊपर गुस्सा करती थी और उसको मारती थी। One night Dick decided he could stand it no more. एक दिन उसने ये सोचा कि अभी इसका बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता हूँ, ये रोज रोज चिल्लाते रहती है, मारते रहती है। Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway. On their way out of London, then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened to him, they were ringing into a message for him. Turn again, Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London. Now what had happened? He couldn't take it anymore, the beatings and all. तो कुक से बहुत तंग आ गया था, तो उसने क्या सोचा कि दूसरे दिन यहाँ से निकल जाना। तो what he did? He took the cat with him और वो घर से निकल गया towards the London, अलग। और वहाँ पे जाते रहते एक स्टोन पे वो रेस्ट मतलब बैठ के रेस्ट करने लगा, और उसके पास ही वहाँ पे चर्च था, और इट वाज नवंबर मतलब विंटर, जब कैरल सिंगिंग वगैरह होता है। तो वहाँ पे चर्च में बेल्स हो रहे थे और वहाँ पे वो ये कॉयर वगैरह गाया जा रहा था, सिंगिंग हो रहा था, और वो सिंगिंग उसके लिए था जैसे कि उसको बोल रहे थे कि यू गो बैक, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा वो इसके लिए निकला था कि मैं कहीं और मेरा तकदीर आजमा लूंगा, कहीं और जाके काम कर लूंगा। एंड व्हेन ही सेड ही कुड लिसन टू दैट म्यूजिक, दैट सॉन्ग दैट ही वाज सेइंग टू टर्न हिम बैक, तुम वापस चले जाओ। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड इट, और उसमें सॉन्ग था कि जैसे कि सिटी लॉर्ड मेयर, इट्स वेरी बिग पोजीशन। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर, तो उसको सिंगिंग में उसको बोला जा रहा था कि लॉर्ड मेयर यू गो बैक विटिंगटन। तो ही सेज कि मैं मेयर, आई वुड लाइक टू बी अ मेयर, ऐसा बोल के ना वो बहुत खुश होता है कि हाँ मैं मेयर बनूंगा। तो वो सिंगिंग में था, एंड ही कुड हियर दैट सिंगिंग and ride in a fine coach, और वापस वो चले गया। I can put up with a few scoldings from the cook if that is what it is stored for me. So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had missed. Now, what had happened? He went away, and what he was seeing, he had heard the singing that he would be a mayor. He was called a mayor of the London. So what he thought, he will, if this is a fortune, then he can just bear the cook, whatever the cook जो उसको परेशान कर रही थी, वो इसने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूंगा, अगर मेरे फॉर्चून में अगर मैं मेयर बनता हूँ लंदन का, तो इट्स अ वेरी सबसे हाई ऑनर है ये, तो ही गोज। एंड ही फील्स दैट कि अगर मेरे तकदीर में लॉर्ड मेयर लिखा है तो मैं थोड़ा बहुत उसकी परेशानी झेल लूंगा। So Dick and his cat retraced their steps to Fitzwarren's house. Again he went to the same house, Fitzwarren's house, back. Luckily they were able to slip back before they had been missed. Now Mr. Fitzwarren used to send ships for across the sea to trade with other countries. Now Fitzwarren क्या काम करता था? वो शिप्स पे ट्रेडिंग करता था। पहले बाय वाटरवेज ही होता था, शिप्स का आना जाना और ट्रेडिंग होना, बिजनेस होना, एक जगह से दूसरी जगह चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना। तो फिट्जवारन वही बिजनेस करता था, शिप्स पे ट्रेडिंग। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and they would bring back goods that could be sold at home. तो यहाँ से कुछ चीजें लेके जाते थे और दूसरे कंट्रीज में दिया जाता था, वहां पे वो सेलिंग होता था और वहां की चीजें लाके ये कंट्रीज में सेलिंग होता था। तो ये ट्रेडिंग होता था और ये बिजनेस फिट्जवारन करता था। One day he called his household together. एक दिन क्या हुआ, उसने पूरे घर के लोगों को इकट्ठा बुलाया। I am sending a ship to the African coast to trade. Now what he said?
आई एम सेंडिंग अ शिप, मैं एक शिप भेज रहा हूँ अफ्रीका के ट्रेड करने के लिए। He said, would any of you like to send something of yours on it? तो फ्रिज वॉरेन आस्किंग कि तुम लोगों को अपनी अपनी कोई चीजें वहां पे बेचने के लिए तुमको भेजना है क्या, क्योंकि मैं एक शिप वहां पे अफ्रीका के कोस्ट पे भेज रहा हूँ। उसका बिजनेस ही वो था। He would have liked to send something of yours on it. Something of yours मतलब अपनी खुद की चीजें। You can then share in the profits of this voyage. It's successful voyage मतलब वो एक ट्रिप होता है शिप का। And what he said, you can give your things to sell over there, and after selling it you will get the part of the profit. मतलब तुम्हारी चीजें वहाँ पे बिक जाएंगी तो वो जो पैसा आएगा उसमें का हिस्सा, उसमें का प्रॉफिट तुमको पैसा मिलेगा। Everyone produced something except for Dick. सबने घर के पूरे लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें अपनी बेचने के लिए दी ताकि उनको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिले, पैसा मिले। But Dick had nothing. Who had nothing to offer? उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं था, वो क्या सेलिंग करेगा? तो सबने दिया था कुछ ना कुछ, but Dick had nothing, तो Dick ने कुछ भी नहीं दिया। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat. Fitzwarren is asking, everybody has given, you do not have anything to offer of your own. तुम्हारा खुद का कुछ चीजें नहीं है जो तुम ऑफर करे, जो तुमको आने के बाद उसका कुछ बेनिफिट मिले। तो Dick says, I have nothing except my cat. I have only my cat. मेरे पास सिर्फ मेरी ये बिल्ली है, बाकी और कुछ भी मेरे पास नहीं है। Then let your cat go on to the ship, said Mr. Fitzwarren. तो Mr. Fitzwarren बोलता है कि तो फिर कैट को भेजो, let your cat go. तुम्हारे तरफ से हम कैट को भेजते हैं, तुम्हारी खुद की है तो देना है। His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said, no, it must be his, not something belonging to someone else. तो एलिस उसकी डॉटर बोलती है कि नो, डिक लव्स हिज कैट, उसकी बिल्ली से वो बहुत प्यार करता है तो उसकी बिल्ली को मत भेजो। तो मैं मेरी तरफ से उसके लिए कुछ चीजें देती हूँ। तो Fitzwarren says, no, you can't give, because the thing whichever you are going to send should be belong to that particular person only. इसका मतलब कि वो चीजें जो भेजेंगे वो उनकी खुद की होनी चाहिए, कोई दूसरा अपनी तरफ से किसी के लिए नहीं कर सकता है। The person cannot send something of theirs telling about the other name. जैसे कि मेरे तरफ से मैं किसी को दे रही हूँ लेकिन मेरी चीजें देती हूँ इसकी तरफ से बोल के, तो वैसा नहीं चलेगा। मेरी चीज उसको देना है तो उसकी खुद की चीजें देना पड़ेगा, मुझे देना है तो मेरी खुद की चीजें देनी पड़ेगी। तो Fitzwarren says that, and Dick has only his cat. So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. उसके पास कुछ नहीं था, कैट थी, तो वो कैट को गुड बाय करता है और कैट को देता है वेरी सैड, बहुत ही सैड होता है। The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. Now, the captain of the ship, the captain of the ship is the who takes the ship, okay? तो वो शिप को जो चलाता है कैप्टन, वो कैट को देख के बहुत ही खुश होता है, क्योंकि कैट वॉज अ गुड माउजर, मतलब अच्छी एक्सपर्ट, चूहा पकड़ने के लिए एक्सपर्ट थी, चूहे पकड़ने के लिए बहुत एक्सपर्ट थी वो कैट। तो वो सोचता है कि मेरे शिप में जितने चूहे रहेंगे वो ये बिल्ली उसको चेज अवे करे, मतलब भगा देगी, तो मुझे मेरी चीजें खराब होने का डर नहीं है। और ये जो पूरा वॉयेज मतलब ट्रिप जो जा रहा है सामान से भर के, तो बहुत सारी चीजें पूरी सेफली जाएंगी, only because of the cat. After some months, the ship arrived at a place on the African coast. कुछ दिनों के बाद वाटरवे से बहुत स्लो जाता है, कुछ दिनों के बाद अफ्रीकन कोस्ट पे वो शिप आ गई। Barbary where people called the Moors lived. वहाँ पे लोग जो थे बिजनेस करने वाले। The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. The captain was astonished and asked if this was that normally happens. Now what had happened? जो शिप लेके गए थे सब, कैप्टन ने क्या किया?
he announced to the king, वहाँ के किंग को अनाउंस किया कि मैंने बहुत सारे अलग अलग चीजें लाए हैं बेचने के लिए, तो तुम पैलेस में हमको बुलाओ और हम वो चीजें लाके दे देंगे. The things which were sent, and they were invited. The queen and king they invited, और जो पूरा खाना रखा गया था, ओके, कैप्टन आने के पहले वो खाना जो भी पूरा अच्छा अच्छा डिशेस बनाए गए थे, वो लोग आ रहे इसके लिए, तो देखा तो वो कैप्टन, वो लोग खाना खाने से पहले वहां पे बहुत सारे चूहे आए और चूहों ने पूरा खाना वहां पे खा के खत्म कर दिया. क्वीन और किंग और क्वीन से बात ही कर रहा था कैप्टन कि चूहे इतने सारे आ गए और पूरा खाना वहां पे खा गए. एंड व्हाट द कैप्टन आस्क्ड, कैप्टन आस्क्ड, इज दिस अ थिंग व्हाट हैपेंस एवरी डे, क्या यही होता है रोज, ऐसे ही होता है खाना रखने पे चूहे आके सब खाना खा जाते हैं, क्या रोज का ऐसे ही हो रहा है? एलिस, यस, एलिस मतलब बहुत सैडली बोला कि हाँ ऐसे ही होता है. Came the reply, the country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. तो जैसे that कि पूरी कंट्री ये प्लेग बीमारी से, प्लेग इज एपिडेमिक ऑफ रेट्स, रेट ये चूहों से ये बीमारी फैलती है. तो जैसे कि ये चूहों से पूरी कंट्री में बीमारी फैली हुई है और हम लोग बहुत ही परेशान हैं ये चूहों से, और हम इसका छुटकारा पा नहीं सकते. I think I may have the answer on my ship, said the captain. तो कैप्टन says, हो सकता है तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है मेरे शिप में. And he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. और वो मैसेज भेजता है कि पैलेस में डिक ने जो कैट भेजी हुई थी अपने तरफ से, वो कैट को लेके आना पैलेस में. More food was laid out and the rats and mice appeared on before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted and the queen asked, what do you call this animal? Now what had happened? बहुत कैप्टन ने ऑर्डर दिया था कि शिप पे जो कैट लाई गई थी वो लेके आओ पैलेस में, और बहुत सारा खाना रख दिया ताकि बहुत जितने चूहे वो बाहर आए और खाना खाए. और जैसे इतने चूहे आए वो कैट को छोड़ दिया गया और कैट ने विद इन सेकेंड्स इतने सारे चूहों को उसने किलिंग करके बहुत सारे चूहों को मार दिया. एंड किंग एंड क्वीन वाज वेरी डिलाइटेड, बहुत ही खुश हो गए. एंड दे आस्क्ड कि ये एनिमल को कौन से नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है. पुस इज द नेम, शी आंसर्स. पुस, वो देखिए इसको पुस बोल के बुलाया जाता है, सेड द कैप्टन. ओके, एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first as she had seen how fiercely the cat had. Now उसको पुस बोल के बुलाया ना, तो पुस पुस करती क्वीन ने किया तो बिल्ली उसके ऊपर एकदम ये होने लगी. पोर मतलब उसके ऊपर एकदम हावी होना, ओके, पाउस करना जैसे. तो she was scared like, and she saw that she was very fierce. Fierce मतलब बिल्ली कितनी एंग्री है, कितनी वो बहुत ही फियर्स है, रेज वाली है, एंग्री एनॉयड वाली है. तो उसने क्वीन ने देखा. Attack the rats and mice. The cat had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom as rats and mice. तो बोलते कि don't get afraid of this puss, मतलब कैट, ये कैट ऐसी है कि बहुत ही फ्रेंडली, आज भी कैट्स हमारे फ्रेंडली होते हैं, घर में भी रहते हैं, तो दे आर वेरी फ्रेंडली विद द ह्यूमन बीइंग्स. तो बोलते कि ये बहुत फ्रेंडली है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, और तुम्हारे किंगडम, तुम्हारे पैलेस में से, तुम्हारे किंगडम में जितने रैट्स माइस है वो पूरे वो खत्म कर देगी. I would give great wealth to own this animal, said the queen. क्वीन तो बहुत खुश होती है कि चूहों से बहुत परेशान थे, तो बोलती कि मैं बहुत सारी दौलत, ग्रेट वेल्थ, बहुत सारी दौलत दे सकती हूँ ये कैट के बदले में. So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. Now what had happened? खुश होके कैप्टन का पूरा जितना सामान था वो क्वीन ने ऐलान किया कि वो खरीद लेगी, और कैट का पैसा 10 टाइम्स ज्यादा जो
उस चीजों के लिए दिया था उससे 10 टाइम्स ज्यादा गुना पैसा वो कैट को देगी। When the ship came back to the port of London, now ship had returned back. मानो जहाँ पे फ्रिजवॉरन रहता था वहाँ पे आ गए। The captain showed Miss Frizwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. Now कैप्टन को भेजा था ना पूरा सामान से, तो वो कैप्टन फ्रिजवॉरन को आकर बताता है बहुत सारे ज्वेल्स, हीरे जवाहरात, गोल्ड, ये सब लाके उसको बताता है और पूरी हिस्ट्री बताता है, स्टोरी बताता है कि किस तरीके से किंगडम में, पैलेस में, क्वीन और किंग के पैलेस में रैट्स कितना परेशान कर रहे थे, माइस कितने परेशान कर रहे थे और किस तरीके से ये कैट ने वो पूरे उनका दिल खुश कर दिया, वो कैट्स को, रैट्स को सब मार के और उससे कितना गुना ज्यादा वो वेल्थ उनको दे दी और पूरा सामान भी उसने खरीद लिया। The story of the Dick cat, the merchant said to Dick, "From now on, Dick," he said, we call you Mr. Whittington, for you are a rich man." तो अभी उसका प्रॉफिट था, वो उसकी कैट थी, तो उसको पूरा दिया गया और उसको बोला गया कि आज से तुमको हम विटिंगटन बुलाएंगे, लाइक यू आर, बिकॉज यू आर अ रिच मैन, तू अभी बहुत ही पैसे वाला बन गया तो हम तुमको विटिंगटन, द डिक विटिंगटन, ओके। Mr. Frizwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. और फ्रिजवॉरन ने क्या किया, पूरा पैसा जितना वो कैट का 10 गुना ज्यादा पैसा दी थी, कितना सारा, वो पूरा पैसा उसने डिक को दे दिया। From this time on, Dick worked with Mr. Frizwarren and became a successful merchant himself. तब से अभी पैसे वाला बन गया था, अभी वो फ्रिजवॉरन के साथ में बिजनेस करने लगा और वो खुद एक मर्चेंट बन गया, बहुत ही रिच पर्सन बन गया। He married Mr. Frizwarren's daughter Alice. Alice से उसने शादी कर ली। Alice was the daughter of Mr. Frizwarren. And 3 times he was elected Lord Mayor of London. और 3 बार Mayor of London वो elect हुआ। You remember the bells ringing, the song of the church. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. और फिर एक जैसा ऑनर मिलता है ना, वैसा वो एक ऑनर का बहुत ही हाई पोस्ट में भी वो बन चुका था, मिस्टर रिचर्ड विटिंगटन। He was not only famous but he was popular too. बहुत फेमस हो गया था, वो फेमस ही नहीं था, बहुत पॉपुलर, हर एक पर्सन उसके बारे में जानता था। He became very very famous person. For he always had the poor with his money. और वो इसके लिए पॉपुलर हुआ था कि वो रिच था इसके लिए नहीं, he helped the poor people. उसने गरीबों को हमेशा मदद की थी, because he had seen ना, पॉवर्टी देखा था उसने, वो खुद भी इतना गरीब था और किस तरीके से उसका फॉर्च्यून काम कर गया था, तो इसके लिए उसने क्या किया था कि गरीबों को बहुत ही मदद करता था पैसों से, इसके लिए वो लोगों में पॉपुलर बन चुका था। Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. Turn again Whittington, the world citizen, Lord Mayor of London. Now, और जब वो बूढ़ा हो गया तभी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कैट की स्टोरी बताता था कि किस तरीके से उसने क्यों, किस वजह से कैट को खरीदा था और किस तरीके से उसकी लाइफ चेंज हुई थी और कैसे उसका वो सॉन्ग था कि जो उसको वापस आने के लिए कहा था कि वो एक मेयर बनेगा, और इसी तरीके से उसने अपनी लाइफ को बिताया था। तो इन दिस वे ही हैड वेरी ग्रेट लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ उसने बिताई, बहुत ही, देखो उसका फॉर्च्यून काम कर गया, उसकी तकदीर काम कर गई। तो मिरेकल्स हैपन, है ना, हमने फर्स्ट पोएम में देखा था कि मिरेकल्स हैपन, ड्रीम्स कम ट्रू, बिलीव इन योरसेल्फ। तो यही था डिक विटिंगटन, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, कैट वाज अ लकी मस्कट फॉर हिम। तो इसी तरीके से ये स्टोरी खत्म हुई। ही वाज अ पुअर बॉय एंड हाउ ही मेड हिज जर्नी, और किस तरीके से उसकी लाइफ में मिरेकल्स हो गए और वो वन डे लॉर्ड मेयर बन गया और इतना रिच और लोगों को हेल्प करने लगा और ही बिकेम अ फेमस पर्सन। आज भी वो उसकी कहानी हम लोगों तक पहुंचाया उसने। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी। रीड द लेसन ट्वाइस, फ्रेम सेंटेंसेस of the main words and read the lesson. I will see you in the next lecture.
Have a nice day. Thank you so much. Take care. Keep safe.